Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is the continuation of the last lecture that was about software process improvement. Before starting today's topic, we recap the previous lecture. In our last lecture, we discussed about software process improvement. We started with the discussion that why we need software process improvement. And we said that most of IT projects or software projects are like overrun or over budgeted. Why? Because somehow we cannot meet the triple constraints. Sometimes we are overrun in terms of time, sometimes in cost, sometimes in scope, or the fourth constant, the most important constant, the quality. So to improve the overall quality, to complete the budget within the constraints, we need to improve our process, our infrastructure. If we improve the infrastructure, the overall process, definitely the good process will lead to the quality product. That was the premises that we set, and then we discussed the journal framework for SPI, and in that framework we more focused on the assessment. Assessment is the key activity. We need to understand the capabilities, means weaknesses and the strengths of the organization, and once we decide with the strengths and weaknesses, we identify the problem areas. We need to devise the mechanism how to improve those areas, and once those improvements or those processes are updated or modified or customized, then we need to assess again to assess the improvement of those possible changes that we did. So we also discussed SPI support groups. There are different type of people within the organization. Some are quality centric, they are more interested in product quality. So if they are supporting the SPI initiative, their core interest is the product quality. There are some people who are quite interested in the in the reforms. So like they want to change the organization structure. They are more interested in human issues. Sometimes people have inclination towards the idealism. They are the ideologists, so they are more interested in the specific domain or some specific sort of applications. When they are interested in SPI initiative, their core interest is about that specific domain, to improve the quality of products in that specific area. Then we discussed the maturity model, and CMM capability maturity model was discussed with its different layers, and we said that unfortunately many organizations are immature rather than mature in their process. So we discussed the immaturity model that also has 4 different levels of immaturity, and then we discussed the key steps or key activities of the SPI. The first activity is the assessment and gap analysis. We start with the existing process in the organization. We need to understand what are our strengths, what are our weaknesses. So with those strengths and weaknesses, we have to identify the potential opportunities or areas, or we may say the problem areas that we need to rectify. And after the assessment, we also need to educate the organization people, that include top management and different project teams, software developers or practitioners. So education and training is at 3 different levels. The first level is that we need to educate the organization staff in general about the process improvement. Then we need to focus on the practitioners, and we need to focus on the tools. Whatever tools are applicable in that specific organization,
we need our organization staff to educate them in that specific tools. And the third level is we need to understand the business processes, the business area. So we need to focus on those specific areas. And then we said the third key activity is selection and justification. And in the selection process, we need to identify the most appropriate process model, the software process model that we are going to adopt or the follow. And then we need the due justification, because if we are choosing something bad, no way we can get the good results. So choice is quite important. If we choose bad, it may cause more harm than good. That's why it should be like thorough analysis with the proper justification, and then we select the process model. And once it is selected, the next key activity is installation or migration. Installation is when we are talking about the complete replacement of the process. If the existing process is not suitable to the organization, so we need to replace it with the new system. And sometimes we need some changes, either minor or major changes in the existing organization process. So those changes, to accommodate those changes in the existing process, is called migration. So whatever is the case, minor or major cases, we need incremental migration. So gradual changes, gradual change is better than rapid change. So we need to consider it. And the next step is evaluation. Once all the above key steps are done, then we need to assess it. Either we improved it or not. So evaluation is also the key step. And then another key step is the risk management. Risk management in SPI. When we are going to take this initiative, a lot of resources are required to complete this process improvement initiative. But we also discussed that more than half of all the effort in SPI in different organizations are totally failed. Why? Because this kind of initiative needs commitment from the top management and also from the staff, and we need right direction and the right steps. If we are missing some of this, these key elements, then quite possible that we will lead to the chaos or the failure. So risk management may be at different level. We need to understand the risk associated with the top management. Similarly, risk associated with the project teams, the software practitioners within the organization. Risk may be associated with the resource allocation, and definitely we need to understand those risks at 3 different key points. What are those key points? The first key point is before starting the initiative, SPI initiative. So prior to that initiative, we need to assess all the associated risks, and then we need to make wise decisions. Secondly, during the SPI process, when we are actually doing that specific activities. And thirdly, when we are doing the evaluation. So at that time, we need to understand what kind of risks are there and how to tackle those risks. And then we discussed 5 critical success factors. Like we said that top management support is quite critical. So if top management is committed to change the organization culture and they are committed to provide the required resources, similarly staff involvement is also quite important, because if staff is not willing to participate in this SPI,
So we cannot change the organization culture. Definitely we need to get them on the board to improve the organization, even organizational culture or the different process activities. Today we are going to cover capability maturity model integration and some other relevant topics to SPI. So we start with CMMI. What is CMMI? CMMI is in fact the upgraded version of the capability maturity model, and it is in fact the complete framework. Capability maturity model जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को असेस कर रहा था एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर, लेकिन जो CMMI है वो एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क है. डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं और इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. ये कंप्रिहेंसिव प्रोसेस मेटा मॉडल है. व्हाट डज इट मीन? इट इज़ प्रोवाइडिंग two types of guidance or models, a continuous model and the second one is staged model. और जब हम कहते हैं continuous models mean के again के जो different आपके पास key areas हैं, processes हैं और उसके अंदर एक continuous improvement के कैसे आपने उसको ग्रेजुअली जो है इम्प्रूव करते चले जाना है, और आइटरेटिव प्रोसेस एक तरह का. और स्टेज्ड मॉडल से क्या मुराद है? स्टेज मॉडल्स मींस कि वही जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, डिफरेंट जो मैच्योरिटी लेवल्स डिस्कस किए थे, बिल्कुल वही लेवल्स, वही स्टेप्स जो है वो यहाँ पे भी CMMI के अंदर भी वो उसी तरह से एप्लीकेबल है. तो ये हमें दो तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करता है. और फिर अगेन इसके अंदर डिफरेंट जो है वो की प्रोसेस एरियाज को डिफाइन किया गया है, लाइक प्रोजेक्ट प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट है, और इस तरह से जो है डिफरेंट एरियाज हैं. और फिर हर एरिया के अंदर जो है, जो हर प्रोसेस एरिया जो है उसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक गोल्स और प्रैक्टिसेस हैं और कुछ जनरल गोल्स और प्रैक्टिसेस हैं. तो अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. इस स्लाइड के ऊपर देखें, ये जो है एक जो हमने बात की कि कंटिन्यूस मॉडल है और स्टेज मॉडल है. तो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर देखें डिफरेंट प्रोसेस एरियाज अवेलेबल हैं, लाइक प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, मेजरमेंट एंड एनालिसिस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट QA. लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर देखें, दैट इज कैपेबिलिटी लेवल. अब वो जो हमने कहा लेवल 0, लेवल 1, इसको भी आगे देखते हैं कि कैसे इसको हम डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट लेवल्स को. तो अगर इस फिगर में देखें, एक एग्जांपल सी है कि वी में से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर कैपेबिलिटी लेवल 3 के ऊपर है, या रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के ऊपर जो है उसका लेवल 2 है. इसी तरह से मेजरमेंट और एनालिसिस के हवाले से जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, दैट आर एट लेवल 1. तो इस तरह से डिफरेंट जो प्रोसेस एरियाज हैं उसके लिए आप हर एक के लिए अपना एक जो उसका मैच्योरिटी लेवल है या उसको कैपेबिलिटी लेवल कह लें, उसको डिफाइन किया जा सकता है या उसको उस तरह से असेस किया जा सकता है. अब हम बात करते हैं CMMI कैपेबिलिटी लेवल्स की. जो इसमें पहला लेवल है दैट इज लेवल 0 और इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट. और इसके अंदर देखें जो प्रोसेस एरिया है दैट आर आइदर नॉट परफॉर्म्ड, या फिर दूसरा क्या है कि उसके अंदर जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं जो कि इससे नेक्स्ट लेवल के ऊपर, लेवल 1 के ऊपर डिफाइन किए हैं, वो जो है अचीव नहीं हो रहे. तो ये लेवल 0 है और ये सबसे पहला बेसिक लेवल है जहाँ पे कि कोई ज़्यादा कोई मैच्योरिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस के हवाले से और डिफरेंट प्रोसेस एरियाज के हवाले से. फिर इसी तरह से लेवल 1 है दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्म्ड, और इसके अंदर स्पेसिफाइड गोल्स जो हैं, जो भी उस लेवल के ऊपर प्रोसेसेस के गोल जो डिफाइन किए गए दैट आर सेटिस्फाइड, और जो भी वर्क टास्क जो रिक्वायर्ड है टू अचीव दोस स्पेसिफिक गोल वो वहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं. तो इस लेवल के ऊपर अगर ऑर्गेनाइजेशन हो तो दैट इज़ लेवल 1 एंड वी में से इट इज़ एट लेवल दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्म्ड. और फिर इसी तरह से लेवल 2 है दैट इज़ मैनेज्ड लेवल, और इसके ऊपर देखें कि जो लेवल 1 का क्राइटेरिया है दैट इज़ सेटिस्फाइड,
और फिर वर्क जो भी वहाँ पे वर्क टास्क हो रहे हैं, जो ओवरऑल वर्क हो रहा है, दैट कन्फर्म्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल डिफाइंड पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी पॉलिसीज डिफाइन किए, सारा जो आपके टास्क हैं, जो वर्क एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो सारी अकॉर्डिंग टू दोज पॉलिसीज हैं। और फिर इसी तरह से पीपल हैव एडिकेट रिसोर्सेज, जो उन टास्क को करने के लिए, एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रॉपरली प्रोवाइड कर रही है। और फिर इसी तरह से इस लेवल के ऊपर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उनको प्रॉपरली प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वॉल्व किया गया है। और सिमिलरली जो वर्क टास्क हैं, जो वर्क प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी हो सकती हैं, वो प्रॉपरली मॉनिटर हो रही हैं, कंट्रोल हो रही हैं और रिव्यू हो रही हैं। और डेफिनेटली मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और रिव्यूइंग जो है, ये की प्रोसेसेस हैं इसके अंदर, या की एक्टिविटीज़ हैं। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैच्योरिटी की बात करते हैं प्रोसेस के हवाले से, या हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो ये की एक्टिविटीज़ हैं। अगली स्लाइड के ऊपर यहाँ पे देखें लेवल 3 डिफाइंड, और डिफाइंड लेवल के ऊपर लेवल 2 जो है क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। और फिर इसी तरह से इस लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है प्रोसेस को टेलर किया जा रहा है। और अगेन जो आपकी डिफरेंट जो वर्क प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट आपकी आउटकम्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स जनरेट हो रहे हैं प्रोसेसेस के हवाले से, वो क्या हो रहे हैं, प्रोसेस एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन के उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये लेवल 3 कहलाते हैं। लेवल 4 क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड, और लेवल 4 के ऊपर जो क्राइटेरिया है या प्री रैक कह लें, दैट इज कि लेवल 3 क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, और यहाँ के ऊपर लेवल 4 पे क्वांटिटेटिव असेसमेंट हो रही है टू कंट्रोल एंड इम्प्रूव एवरी प्रोसेस एरिया। और फिर इसी तरह से अगर हम लेवल 5 की बात करें, तो लेवल 5 जो है इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइज्ड लेवल, और ऑप्टिमाइज्ड लेवल के ऊपर लेवल 4 का जो भी क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। और प्लस यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस है, एंड वी आर अप्लाइंग आर यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर मीन्स टू ऑप्टिमाइज, और कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और अल्टीमेटली जो इस सारी जो कैपेबिलिटी लेवल्स या जो जितने भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं इस तरह के प्रोसेस इंप्रूवमेंट के हवाले से, अल्टीमेट उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एक प्रोसेस एरिया प्रोजेक्ट प्लानिंग। और प्रोजेक्ट प्लानिंग को जो है हम उसके अंदर देखें कि स्पेसिफिक गोल जो है दैट इज एस्टैब्लिश एस्टिमेट्स, ये पहला गोल है। अब इस गोल के अंदर क्या स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं, अब उसको देखें। एस्टिमेट एस्टैब्लिश करने, तो पहला स्पेसिफिक जो उसकी प्रैक्टिस है दैट इज एस्टिमेट द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, कि फर्स्ट वी नीड टू एस्टिमेट फॉर द प्रोजेक्ट स्कोप। और फिर इसी तरह से एस्टैब्लिश एस्टिमेट ऑफ वर्क प्रोडक्ट एंड टास्क एट्रीब्यूट्स, क्या डिफरेंट वर्क प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है, और क्या टास्क जो है एट्रीब्यूट्स होंगे, उसको देखते हुए आपने एस्टिमेशन करनी है। इसी तरह से थर्ड जो स्पेसिफिक प्रैक्टिस है दैट इज डिफाइंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, क्या आप उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए किस तरह की जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को यूज़ करने जा रहे हैं। और इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर कि प्रोजेक्ट स्कोप क्या है, उसके लिए किस तरह से एस्टिमेट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, उसकी क्या डिफरेंट फेजेस हैं। और फिर इसी तरह से इसके अंदर जो फोर्थ प्रैक्टिस है दैट इज डिटरमिन एस्टिमेट्स फॉर एफर्ट एंड कॉस्ट, के ह्यूमन रिसोर्स के वाले से या टाइम के वाले से देख लें क्या एफर्ट रिक्वायर्ड है और उसके लिए क्या कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। तो ये एक जो पहला स्पेसिफिक गोल है एस्टैब्लिश एस्टिमेट्स, उसके अंदर देखें कि ये स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें फॉलो करनी है, जिनको हमने प्रैक्टिस करना है अगर हम उस तरह से उस स्पेसिफिक लेवल को अचीव करना चाह रहे हैं। दूसरा स्पेसिफिक गोल देखें दैट इज डेवलप ए प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट प्लान डेवलप करना है, उसके लिए क्या आपके पास स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज एस्टिमेट द बजट एंड स्केड्यूल, पहले आपने बजट और स्केड्यूल को एस्टिमेट करना है, क्या क्या कुछ आपको कॉस्ट चाहिए, क्या कॉस्ट आएगी, क्या कुछ टाइम चाहिए। और फिर इसी तरह से
सेकंड देखें स्पेसिफिक टास्क, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट रिस्क्स, और रिस्क मैनेजमेंट को भी हमने डिस्कस किया था, और रिस्क डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। तो अब आइडेंटिफाई करना कि क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर। थर्ड की प्रैक्टिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्लान इज प्लान फॉर डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट कैसे होगी, उस प्रोडक्ट के लिए क्या कुछ डेटा रिक्वायर्ड होगा एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दैट डेटा। और फोर्थ प्रैक्टिस देखें प्लान फॉर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, किस तरह से अवेलेबल होंगे विद इन ऑर्गेनाइजेशन या एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरह की सारी प्लानिंग जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान। इसी के अंदर एक और की प्रैक्टिस जिसको स्पेसिफिक प्रैक्टिस कहा गया दैट इज प्लान फॉर नीडेड नॉलेज एंड स्किल्स। एक तो ये कि आपको रिसोर्सेज क्या चाहिए, और फिर उसके बाद ये कि क्या आपको नॉलेज लेवल या स्किल सेट चाहिए और क्या वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। सो यू नीड टू प्लान फॉर इट। और फिर इसी तरह से एक और प्रैक्टिस देखें दैट इज प्लान स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट भी जो है हमने उससे भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए। सो यू नीड टू प्लान फॉर दैट कि कैसे उनको आपने इन्वॉल्व करना है, किस लेवल पे किसको क्या कम्युनिकेट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और एंड सो ऑन। और फिर इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट के वाले से की प्रैक्टिस दैट इज एस्टैब्लिश द प्रोजेक्ट प्लान। जब हम आप ये सारी प्लानिंग की एक्टिविटीज़ कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको फिर अल्टीमेट क्या एक प्रोजेक्ट प्लान ही इस्टेब्लिश करना है या डिफाइन करना है, डिलीवर करना है। अब देखें स्पेसिफिक गोल 3 इन दिस प्रोसेस एरिया जो कि प्रोजेक्ट प्लानिंग है। अच्छा, ऑब्टेन कमिटमेंट टू द प्लान। आपने यू मस्ट बी कमिटेड टू द प्लान। तो उसके अंदर देखें स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस क्या है। द फर्स्ट वन इज रिव्यू प्लान्स दैट अफेक्ट द प्रोजेक्ट। यू डेफिनेटली नीड क्या कहना चाहिए इसे, कंटिन्यूअस रिव्यूज या टाइम टू टाइम रिव्यूज, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। और अगर कुछ हमने पहले भी बात की थी कि प्लान्स जो है वो स्टैटिक नहीं होंगे, चेंजेस आएंगी तो उन चेंजेस की वजह से यू नीड टू चेंज द प्लान्स आल्सो। तो वो उसको देखना। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो स्पेसिफिक प्रैक्टिस है in this specific goal that is reconcile work and resource levels. You need commitment, you need good understanding and estimation. तो अगेन के चेंजेस आएंगी तो उस चेंजेस के हवाले से आपको फिर से देखना होगा, चीज़ों को एनालाइज करना होगा, फिक्स्ड करना होगा कि क्या कुछ जो है वर्क आपने अचीव करना है, क्या कुछ रिसोर्स लेवल्स होंगे आपके पास। और थर्ड इसी तरह से प्रैक्टिस देखें ऑब्टेन प्लान कमिटमेंट। और प्लान कमिटमेंट कैसे आएगी, जब टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होगी तो डेफिनेटली फिर नीचे जो स्टाफ है वो भी उसी तरह से कमिटेड नज़र आएगा। टॉप टू डाउन जो है कमिटमेंट नज़र आनी चाहिए। और इसी तरह से कुछ जेनेरिक गोल्स भी हो सकते हैं। तो अभी जर्नल गोल जो है इस एरिया के अंदर दैट इज अचीव स्पेसिफिक गोल्स, कि उन स्पेसिफिक गोल्स को आपने अचीव करना है। अब उनको अचीव करने के लिए हमारे पास जनरल प्रैक्टिसेस क्या है, हाउ वी कैन अचीव इट। द फर्स्ट वन इज परफॉर्म बेस्ड प्रैक्टिसेस। जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं, उसको आप परफॉर्म करें। सेकंड इसके अंदर देखें जनरल गोल दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज मैनेज प्रोसेस। हाउ टू इंस्टीट्यूशनलाइज जो भी आपका प्रोसेस है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। तो उसके लिए अब प्रैक्टिसेस क्या है, जनरल प्रैक्टिसेस। द फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। सबसे पहले तो आप पॉलिसी बनाए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर कि कैसे आपने वो उस प्रोसेस को कैसे आपने इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, कैसे उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर सेकंड क्या है, प्लान द प्रोसेस। डेफिनेटली प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के बगैर नहीं होगा। थर्ड देखें प्रैक्टिस दैट इज प्रोवाइड रिसोर्सेज। और इसको अगर आप देखें हमने एसपीआई के इनिशिएटिव में देखें तो ये बिल्कुल इक्वली एप्लीकेबल है कि प्लान करें और प्रॉपर प्लानिंग के बाद क्या करें, रिसोर्स एलोकेट करें, रिसोर्स प्रोवाइड करें जो कि उन टास्क को, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए चाहिए। और फिर इसी तरह से असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी,
विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी टास्क प्रॉपरली नहीं होंगे। तो इसी तरह से हर लेवल के ऊपर जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करें और फिर उनको जो है बाद में वो आंसरेबल भी होंगे। इसी तरह से एक और जो प्रैक्टिस है दैट इज ट्रेन पीपल। हमने जो एजुकेशन और ट्रेनिंग की जैसे बात की थी, उसी तरह से अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो है इस तरह की प्रोसेस को जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यू नीड ट्रेनिंग, सो ट्रेन योर पीपल। और फिर मैनेज कॉन्फ़िगरेशंस, और फिर इसी तरह से एक और देखें, आइडेंटिफाई एंड इन्वॉल्व रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट प्लानिंग के हवाले से। और फिर इसी तरह से मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोसेस। ये इन जनरल फिर अगेन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात हो रही है, और हर लेवल के ऊपर हर डिफरेंट जो प्रोसेस एरिया है उसके अंदर हमें मॉनिटरिंग और कंट्रोल एक्टिविटीज चाहिए। और फिर इसी तरह से ऑब्जेक्टिवली एवेलुएट एडहेरेंस। और ये क्या है कि किस तरह से आप क्वांटिफाई करते हैं कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी अपने प्रैक्टिसेस रेलेवेंट टू दैट प्रोसेस, जो भी आपने एस्टेब्लिश किए हैं कि इनको फॉलो करना है, तो उसको कैसे क्वांटिफाई आप कर सकते हैं, कैसे क्वांटिटेटिव असेसमेंट होगी कि ये हुआ है या नहीं हुआ। और फिर इसी तरह से एक और जनरल प्रैक्टिस दैट इज रिव्यू स्टेटस विद हाई लेवल मैनेजमेंट, कि आपने क्या करना है, स्टेटस रिपोर्टिंग करनी है, उसको रिव्यू करना है विद टॉप मैनेजमेंट, तभी आप जो है ज़्यादा बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे। एक और जनरल गोल देखें, दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज अ डिफाइंड प्रोसेस। और इस अब डिफाइंड प्रोसेस जो है, पहले हम ओवरऑल की बात कर रहे थे, अब देखें इसके अंदर कि जनरल प्रैक्टिस के एस्टैब्लिश ए डिफाइंड प्रोसेस, उसको एस्टैब्लिश करें। और फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन है या इंफॉर्मेशन कलेक्शन है रेलेवेंट टू द इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो कैसे कितना कुछ इम्प्रूव किया है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इसी तरह से एक और जो इसके अंदर देखें जनरल गोल है, दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज ए क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड प्रोसेस। इसको कैसे आप इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे लेके आएंगे क्वांटिटेटिवली मैनेज प्रोसेस को। फर्स्ट इसके अंदर प्रैक्टिस है दैट इज एस्टैब्लिश क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स। जब तक आपके पास कुछ मीट्रिक्स, कुछ मेजर्स नहीं होंगे, क्वांटिफाई नहीं कर सकते अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को, तो तब तक आप क्वांटिटेटिव असेसमेंट नहीं हो सकती। आप नहीं देख सकते कि अच्छा ये अच्छा है, ये बुरा है। तो क्वालिटेटिव असेसमेंट से हट के, क्योंकि क्वालिटेटिव असेसमेंट डिफरेंट हो सकती है और उसके ऊपर कंसेंसस जो है वो बहुत मुश्किल है। तो क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करना जो है ये एक जनरल प्रैक्टिस है। और दूसरी इसी तरह से जो इसके अंदर जो जनरल प्रैक्टिस है दैट इज स्टेबलाइज सब प्रोसेस परफॉर्मेंस। जो भी उस एक प्रोसेस के अंदर जो सब प्रोसेसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे स्टेबल करना है। और फिर इसी तरह से एक नेक्स्ट और जनरल गोल देखें, इंस्टीट्यूशनलाइज एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस। और ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस कैसे होगा, इसके लिए प्रैक्टिस क्या होगी, इंश्योर कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस आपने फोकस करना है इम्प्रूवमेंट के ऊपर, और कलेक्ट रूट काज ऑफ प्रॉब्लम्स। जब आप रूट काज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, तो प्रॉब्लम्स रीअकर नहीं होंगे। तो अगर आप ये देखें जो जेनेरिक गोल्स हैं, तो ये बेसिकली हर एक लेवल के ऊपर जो है हमें प्रैक्टिसेस बता रहे हैं कि कैसे हम जो है लेवल 0 से स्टार्ट होंगे और कैसे लेवल 5 पे आएंगे, और उस हर लेवल के ऊपर क्या प्रैक्टिसेस हैं। जब हम स्पेसिफिक गोल्स की बात करते हैं और जब हम यहाँ पे जनरल गोल्स की बात करते हैं, तो रेलेवेंट प्रैक्टिसेस को देखना, अंडरस्टैंड करना और उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पीपल CMM की, और पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो है इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, और ये उससे हट के क्यों है। अभी तक हमने बात की प्रोसेस की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस की, लेकिन अगर प्रोसेस बहुत अच्छा डिफाइन हो, आपकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हो, लेकिन जो आपका स्टाफ है, द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, अगर वो विलिंग नहीं है, अगर वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, अगर वो प्रॉपरली जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो आपका अच्छे से अच्छा प्रोसेस भी जो है वो बेकार है। तो इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन,
और उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम क्या किया कि पीपल के हवाले से क्या हमारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो ये पीपल सीएमएम बेसिकली क्या है, इट इज रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटिंग वर्कफोर्स प्रैक्टिसेस। पहले सारी बात जो हमने की वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस रिलेटेड की, लेकिन अब जो पीपल सीएमएम की बात है दैट इज मोर टुवर्ड्स वर्कफोर्स प्रैक्टिसेस, और ये अगेन फोकस करता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किन किन टर्म्स के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपकी जेनेरिक वर्कफोर्स नॉलेज है उसके अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, दैट इज आल्सो कॉल्ड द कोर कॉम्पिटेंसीज। जो आपके जो डिफरेंट की एक्टिविटीज हैं, जैसे आप रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के फेज के ऊपर देखें, डिजाइनिंग के हवाले से देखें, कोड टेस्टिंग के हवाले से देखें, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इस तरह की आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर दैट इज बेसिकली कोर कॉम्पिटेंसीज, उसको फोकस करें। सेकेंडली स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, और इनको हम वर्कफोर्स कॉम्पिटेंसीज भी कहते हैं। और ये भी क्यों जरूरी है कि टेक्निकल नॉलेज होना जो हम स्पेसिफिक टू द सॉफ्टवेयर है वो होना भी जरूरी है, और उसके साथ साथ हमने ये स्टार्ट में ये बात कर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की है कि मैनेजमेंट के स्किल्स, मैनेजमेंट के प्रोसेसेस that are also quite important for IT organizations और successful completion of the project। तो अब उस एरिया के अंदर भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। इसी तरह से थर्ड जो है प्रोसेस रिलेटेड इन जर्नल जो एबिलिटीज हैं उसको उसके अंदर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट चाहिए। और फिर इसी तरह से पीपल सीएमएम के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन को 5 लेवल्स के ऊपर क्लासिफाई किया जा सकता है, मेच्योरिटी लेवल्स को। और ये जो पीपल सीएमएम फ्रेमवर्क है, सीएमएम फ्रेमवर्क, इट कम्प्लीमेंट्स ऑल द अदर, या यूं कहना चाहिए इट कम्प्लीमेंट्स एनी एसपीआई फ्रेमवर्क। जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के इनिशिएटिव्स हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उनके साथ ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनको सपोर्ट करता है। और फिर इसी तरह से इसका एक और जो की ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो भी आपका वर्कफोर्स एटमॉस्फेयर है वो अट्रैक्ट करे, डेवलप करे और रिटेन करे आउटस्टैंडिंग टैलेंट को। इसके बगैर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ग्रोथ करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने मतलब जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना होगा, उनको रिटेन करना होगा। तो ये पीपल सीएमएम की जो प्रैक्टिसेस हैं या जो ये लेवल्स हैं ये हमें उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को असेस करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। इस स्लाइड के ऊपर देखें, यहाँ पे देखें लेवल जो टॉप लेवल है दैट इज ऑप्टिमाइज्ड, और यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर। और यहाँ पे कौन से प्रोसेस एरियाज हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, दैट इज कंटिन्यूअस वर्कफोर्स इनोवेशन, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस अलाइनमेंट और कंटिन्यूअस कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट। तो ये प्रोसेस एरियाज हैं जिनके ऊपर फोकस होगा व्हेन some organizations are at level that is called optimized, ठीक है, in the context of people CMM। इसी तरह से जो लेवल प्रेडिक्टेबल है उसके अंदर देखें क्वांटिफाइज एंड मैनेजेस नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, ये फोकस होगा। और प्रोसेस एरियाज क्या है हमारे पास, प्रोसेस एरियाज आर मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपिटेंसी बेस्ड एसेट्स, एम्पावर्ड वर्क ग्रुप्स और कंपिटेंसी इंटीग्रेशन। और अगर आप देखें डिफाइंड जो लेवल है और इसके ऊपर देखें जो फोकस है दैट इज आइडेंटिफाइज एंड डेवलप्स नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। ऊपर वाला लेवल क्वांटिफाई कर रहा था, यहाँ पे हम उससे थोड़े से नीचे के लेवल के हैं दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज। और इसके अंदर देखें जो प्रोसेस एरियाज हैं जिनके ऊपर फोकस होगा दैट इज पार्टिसिपेटरी कल्चर, वर्क ग्रुप डेवलपमेंट, कंपिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिसेस। इसी तरह से नेक्स्ट लेवल देखिए दैट इज मैनेज्ड, और मैनेज्ड के अंदर जो है समहाउ रेपिटेशन है, रिपीटेबल प्रोसेसेस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बेसिक पीपल मैनेजमेंट इसके अंदर है। और यहाँ पे जो प्रोसेस एरियाज हैं दैट इज कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और जो
सबसे लोएस्ट लेवल है दैट इज इनिशियल लेवल, और यहाँ पे जो आपके जो फोकस है दैट इज ऑन द इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस। तो उसको जैसे आप रिमूव करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और फिर इसी तरह से मूव करेंगे मैनेज्ड पे, मैनेज से डिफाइन पे। और ये जो फिगर है ये पेज नंबर 208 से है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स अप्रोच जो बुक है 7th एडिशन। अब हम बात करते हैं कुछ और प्रोसेस मॉडल्स की, जो जैसे हमने पहले CMMI को डिस्कस किया, अब कुछ और फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास जो कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, हम उनको ब्रीफली देखते हैं। तो जो पहला उसके अंदर एक और कॉमन फ्रेमवर्क है दैट इज कॉल्ड स्पाइस, और स्पाइस से बनता क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन। और ये ISO के डिफरेंट जो प्रोसेस असेसमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं ये उनको सपोर्ट करता है स्पाइस। और अगेन ये जो मॉडल है ये दैट इज फॉर द प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट को ज़्यादा जो है फोकस है उसके ऊपर। और अगेन ये जो ISO प्रोसेस असेसमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली ये क्या है कि गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन असेसमेंट, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो ISO के स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कि स्पाइस जो है वो कंप्लीमेंट करता है, यूँ कहना चाहिए। इनका पर्पस क्या है कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं फॉर कंडक्टिंग एन असेसमेंट एंड रेटिंग द प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन। और इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करने वाली दैट इज कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस है, इन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस है स्पाइस के अंदर। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, क्या उनकी सिलेक्शन होगी, कौन से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, हाउ टू अप्लाई दोस असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स। और फिर इसी तरह से स्पाइस जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग टू द असेसर्स, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं या असेसर्स उनको कह लें आप, ऑडिटर्स जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अगर वो असेस करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग की भी बात करता है स्पाइस। और इसी तरह से एक और मॉडल है दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप्स जो है अगेन ये कंप्लीमेंट करता है, कन्फर्मस करता है विद स्पाइस। और स्पाइस और इसके ऊपर जो फोकस है ये अगेन इसका फोकस एवेल्युएशन के ऊपर है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस की यूजिंग जो क्राइटेरिया सेट करता है कि किस बेसिस के ऊपर आपने असेसमेंट करनी है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको डिफाइन किया है और फिर उसके बेस के ऊपर आप असेस करते हैं या एवेल्युएट करते हैं। और इसी तरह से क्या करता है, ये आपको प्रोसेस मैच्योरिटी लेवल बताता है बूटस्ट्रैप भी। एक और जो काफ़ी कॉमन जो प्रोसेस मॉडल है इम्प्रूवमेंट का दैट इज या फ्रेमवर्क है दैट इज TIC। इसको टिकट भी कहते हैं और TIC भी कहते हैं। और ये भी अगेन सपोर्ट करता है या ऑडिटिंग मेथड है फॉर ISO 9000। और ISO 9000 जो है वो जनरल क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जबकि पीछे जो हमने बात की स्पाइस की और बूटस्ट्रैप की, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक ISO के स्टैंडर्ड हैं वो उनसे डील करते हैं। लेकिन TIC जो है एक जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ISO 9000 कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं उनके अंदर सर्टिफिकेशन ले सकती है कि जी हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो अब जो IT के हवाले से जो सॉफ्टवेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वो अगर ISO 9000 सर्टिफिकेशन के लिए जाती है तो उसके अंदर जो हमें असेसमेंट फ्रेमवर्क है दैट इज TIC। और जो ISO 9000 जिस चीज़ पे फोकस करती है दैट इज प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल। ये भी एक अगेन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक थीम है या फैक्टर है जितने भी हमारे पास इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तो प्लान, व्हाट डज इट मीन कि वी नीड टू प्लान फॉर द प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज एंड टास्क। क्या सब कुछ प्लानिंग एक्टिविटीज, और डेफिनेटली प्लानिंग एक्टिविटीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो कोई भी सिस्टमेटिक काम नहीं हो सकता। तो प्लानिंग फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज
एंड ऑल द रिलेटेड टास्क्स। और फिर इसी तरह से जो की एक्टिविटी सेकंड है दैट इज डू मीन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जब आपने प्लान किया तो अब उसके अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशन है। और फिर इसी तरह से थर्ड इज चेक इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस। और कंट्रोलिंग प्रोसेस एक्चुअली असेस करना है उस प्रोसेस को जो आपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्टेब्लिश किया है, उसके हवाले से असेसमेंट, और उसके हवाले से जो है मॉनिटरिंग। और फोर्थ जो है दैट इज एक्ट। और ये क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज हैं कि जब आपने असेस किया, असेसमेंट की, मॉनिटरिंग की, तो उसके बेस के ऊपर जो भी आपके एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं, प्रॉब्लमेटिक है, उनको कैसे इंप्रूव करने हैं, उनसे कैसे जो है वो उनको रेक्टिफाई करने। दैट इज द होल प्रोसेस, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। और अगेन जो टिक आईटी है ये थ्रू आउट द साइकिल जो है ये यूज होता है प्लान, डू, चेक, एक्ट के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं, टिक आईटी वहाँ पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल की, पर्सनल लेवल के ऊपर हमारे पास क्या मॉडल है इम्प्रूवमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के हवाले से। दैट इज कॉल्ड पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस। और पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है इसका थीम ये है कि रादर देन कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाए, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए और डेफिनेटली ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ऑर्गेनाइजेशन की बजाय, एक बड़े लेवल की बजाय, अगर हम फोकस को अपने थोड़ा सा माइक्रो लेवल के ऊपर ले जाएं, इंडिविजुअल्स के ऊपर ले जाएं, और हम उनको ये प्रिविलेज दें कि वो किस तरह से अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, तो ये उस फिलॉसफी को लेते हुए ये प्रपोज किया गया। और इसके अंदर देखें, कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो किसी न किसी तरह से कोई प्रोसेस फॉलो कर रहा होता है। तो उस प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रॉपरली एक्टिविटीज़ की जाए या कुछ इस तरह के जो है वहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाए जिससे वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो अब इसके अंदर जो की एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। और ये वाट्स हम्फ्री एक बड़े अच्छे रिसर्चर हैं सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के अंदर, उन्होंने प्रपोज किया। और पहली जो की एक्टिविटी है दैट इज़ प्लानिंग, कि जो भी डिफरेंट डेवलपर्स हैं वो जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो क्या करें, प्लानिंग करें। प्लानिंग फॉर व्हाट, टू एस्टिमेट फॉर रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट साइज, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपोनेंट बना रहे हैं, साइज एंड डिफेक्ट्स, क्या कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं, डिफेक्ट्स को भी वो एस्टिमेट करें। और फिर इसी तरह से मैट्रिक्स प्रपोज करें कि किन मैट्रिक्स के थ्रू जो है वो रिकॉर्डिंग होगी, उसको भी देखें। वी नीड टू आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट टास्क, कि हमें क्या कुछ डेवलपमेंट करनी है, क्या हमारे की टास्क होंगे, एंड देन वी आर रिस्पॉन्सिबल टू स्केड्यूल द होल प्रोजेक्ट। जो आपकी एक्टिविटीज़ है डेवलपमेंट की, उसके लिए स्केजुलिंग करनी है। और ये प्लानिंग की एक्टिविटीज़ होगी। अब सेकंड जो की एक्टिविटी है दैट इज़ हाई लेवल डिज़ाइन। और हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर आपने क्या करना है, वी नीड टू डिज़ाइन एट कंपोनेंट लेवल, तो कंपोनेंट डिज़ाइन करना है। और फिर इसी तरह से वी मे यूज़ द प्रोटोटाइपिंग टेक्निक इफ़ वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द डिज़ाइन, हमें कोई ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, तो वी मे गो फॉर द प्रोटोटाइपिंग। और फिर जो भी डिफरेंट इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने नोट डाउन करना है और उनको साथ साथ ट्रैक करना है। तो ये हाई लेवल डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ हैं। और इसी तरह से थर्ड जो की एक्टिविटी है इस पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर दैट इज़ हाई लेवल डिज़ाइन रिव्यू। वी नीड फॉर्मल वेरिफिकेशन मेथड्स, कि हम क्या हमारे पास फॉर्मल मेथड्स हैं टू वेरीफाई, उनको अप्लाई करना है जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। और फिर अगेन वो जो भी डिफरेंट मेट्रिक्स हैं उनको तमाम जो हमारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं उसके लिए हमने मेंटेन करना है, उसके लिए हमने उनको रिकॉर्ड करना है, उसके हवाले से हमें डेटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट की एक्टिविटी इज़ द डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि वो जो भी कंपोनेंट लेवल आपने डिज़ाइन किया है उसको अगेन आपने रिव्यू करना है, उसमें क्या अगर इफ़ यू नीड रिफाइनमेंट वो करनी है। और फिर
यू नीड टू मूव टूवर्ड्स डेवलपमेंट। आपने कोड जो है वो जनरेट करना है, उसकी जो टेस्टिंग है और जो सारी एक्टिविटीज रिलेटेड है, और अगेन मैट्रिक्स आपने जो भी डिसाइड किए हैं उसके अगेंस्ट आपने डेटा कलेक्शन करनी है। और फाइनल जो की एक्टिविटी है इस पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में, दैट इज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मीन्स कि आपने यू नीड टू डू द एनालिसिस, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया बेस्ड ऑन डिफरेंट मैट्रिक्स, उसका एनालिसिस करना है। उसके अंदर आपने देखना है कि हाउ इफेक्टिव वाज योर प्रोसेस, और फिर जो भी आपके पास फाइंडिंग्स हैं वो आपके पास गाइड हैं फॉर द प्रोसेस मॉडिफिकेशन। बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स you can modify your process if you understand or if you feel that there is still requirement or need to modify the process activities, तो आप उसको कर सकते हैं। जिन रिसर्चर की मैंने बताया आपको कि जिन्होंने ये प्रपोज किया पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, उन्हीं ही की फाइंडिंग है कि अनफॉर्चुनेटली उसको इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो नहीं किया गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक और वेरिएशन लेके आए कि ना तो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, ना ही हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाते हैं, बल्कि हम टीम लेवल की बात करते हैं। और टीम लेवल के ऊपर जो है टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक मॉडल उन्होंने प्रपोज किया फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। और इसके जो हो ऑब्जेक्टिव थे, की ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वन इज सेल्फ डायरेक्टेड प्रोजेक्ट टीम, कि वो जो प्रोजेक्ट टीम है वो खुद से जो है अपने लिए डायरेक्शन सेट करे, खुद से अपने लिए टास्क डिफाइन करें, और जो उनके जो मैनेजर्स हैं वो क्या करें, दे शुड मोटिवेट एंड ट्रेन देम। वो जो भी डिफरेंट टीम्स हैं उनको मोटिवेट करें, उनकी प्रॉपर कोचिंग करें, और फिर इसी तरह से प्रोसेस इंप्रूवमेंट करें। किस तरह से, CMM लेवल 5 का जो बिहेवियर है उसको कंसीडर करें अपने लिए नॉर्मल, और उसको टारगेट करते हुए CMM लेवल 5 जो कि मैक्सिमम लेवल है, जो कि वी मे से द बेस्ट लेवल, उसको अपने लिए जो है ना टारगेट करें। और फिर इसी तरह से इसका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ये हमें इम्प्रूवमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, टीम से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर। और इसका ऑब्जेक्टिव ये भी था एक टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस का, कि इसको एजुकेट किया जाए, जो IT के जो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये ट्रेनिंग दी जाए, इसको इसकी ये जो भी थीम है, जो इसकी की एक्टिविटीज़ हैं उनको बताई जाए, पढ़ाई जाए, समझाई जाए, ताकि वो जब इंडस्ट्री में जाएं तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकें। अब इसके अंदर जो की एक्टिविटीज़ हैं, द फर्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट लॉन्च, कि वो अगेन कि प्रोजेक्ट को आपने लॉन्च करना है तो फिर वो प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो होंगी। इसी तरह से हाई लेवल डिज़ाइन, जैसे हमने पीछे बात की, फिर हाई लेवल डिज़ाइन से इम्प्लीमेंटेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन से इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग है, और फाइनली जो है पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम में वही कि एनालिसिस करना है, जो भी आपने डेटा गैदर किया है, कहाँ पे आपने सही परफॉर्म किया है, कहाँ पे स्टिल आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के हवाले से, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब SPI इनिशिएटिव लिया जाता है तो आपको ह्यूज रिसोर्सेज चाहिए, और इवन ये जो है कई सालों का प्रोजेक्ट हो सकता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट का। तो अब उसके अगेंस्ट आप कैसे जो है वो असेस करेंगे कि आपको कुछ उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, या और टेक्निकल टर्म में देखें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SPI इनिशिएटिव के अंदर। तो क्वालिटेटिव लेवल के ऊपर देखें किस तरह से हो सकता है। क्वालिटेटिव लेवल के ऊपर तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी डिफरेंट आपके मैट्रिक्स हैं, जिसको क्वालिटी फिल्टर्स कह रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। आपके जो प्रोडक्ट जो डिलीवर हो रही है वो ज़्यादा अच्छी डिलीवर हो रही है, पहले से मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है। या आप चेंज जो पहले जिस तरह से चेंज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस था वो ज़्यादा बेहतर हो गया है आफ्टर SPI, तो ये भी एक क्वालिटेटिव मेजर हो सकता है। इसी तरह से आपके जो प्रोडक्ट जो SPI के बाद डिलीवर हो रही हैं
उसके अंदर चेंज जो है या बग्स जो है वो कम है, आपका जो रीवर्क है इवन डेवलपमेंट से पहले, डिप्लॉयमेंट से पहले भी और डिप्लॉयमेंट के बाद भी वो रीवर्क कम है। और तो अगर इस तरह की जो इंडिकेशंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इट मीन्स के एसपीआई के जो ऊपर इन्वेस्टमेंट थी वो आपको रिटर्न कर रही है, वो आपको एक्चुअल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन इसको क्वांटिफाई करना इट इज समहाउ डिफिकल्ट टास्क, और उसके लिए फिर थॉरो एनालिसिस करने होंगे, सोचना होगा कि किस तरह से इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। एक क्लासिक जो इक्वेशन है आरओआई की, दैट इज टोटल बेनिफिट्स माइनस टोटल कास्ट और डिवाइडेड बाय टोटल कास्ट करके, तो आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि वो किस तरह से इसको क्वांटिफाई करते हैं, और फिर उसी तरह से वो देख सकते हैं कि जो उनकी एसपीआई इनिशिएटिव्स हैं वो किस हद तक सक्सेसफुल हैं। अब हम बात करते हैं कुछ करंट ट्रेंड्स की इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। जो जब ये स्टार्ट हुआ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का सिलसिला आज से 15-20 साल पहले, तो इसके अंदर जो है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किया, और अनफॉर्चुनेटली जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन एसपीआई दे कुडंट गेट द परसीव्ड बेनिफिट्स, तो इसीलिए फेलियर रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सक्सेस रेट। और एक स्टडी के मुताबिक इसमें जो कॉस्ट आती है एसपीआई की, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और ओवर द ईयर्स जो है ये हो सकती है, तो 25,000 से लेकर $70,000 कॉस्ट आती है एसपीआई के अंदर पर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन के ऊपर। तो अब जो करंट ट्रेंड है एसपीआई का, अब जो फोकस है दैट इज ऑन एजाइल अप्रोच, कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल अप्रोच नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे सीएमएमआई जो है वो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस जो है उसके डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके अंदर वो स्पेसिफिक गोल्स और स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस और जनरल गोल्स और जनरल प्रैक्टिसेस वो सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। ऑल्दो कि ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, लेकिन स्टिल इन एजाइल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अब हमारी डेवलपमेंट जो है दैट इज क्वाइट एजाइल, तो अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एसपीआई की जो अप्रोच है वो भी समहाउ एजाइल ही होनी चाहिए। और फिर इसमें जो अब फोकस किया जा रहा है दैट इज वी नीड टू फोकस ऑन द प्रोजेक्ट लेवल रादर देन कि हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें और सारे प्रोजेक्ट्स की बात करें। वी नीड टू फोकस ऑन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अगर हम लेके चलेंगे इन इनिशिएटिव्स को, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर इसी तरह से इसके अंदर अभी जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है या जो रिकमेंडेड गाइडेंस है दैट इज वी नीड टू फोकस ऑन द की प्रैक्टिसेस। क्या की प्रोसेसेस की प्रैक्टिसेस हैं, किस स्पेसिफिक प्रोसेसेस के अंदर, एरियाज के अंदर कौन सी की प्रैक्टिसेस हैं जिनको फोकस करना है, रादर देन कि हम डजन्स ऑफ प्रैक्टिसेस जो है उसको लेके चले। मैंने कहा ना कि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं जो कि ये सारी प्रैक्टिसेस को डिफाइन करते हैं, तो उनमें की प्रैक्टिसेस क्या हैं रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, और उनको फोकस करना चाहिए। और फिर इसी तरह से जब हम फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एसपीआई, उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए जो अब रिसेंट ट्रेंड है दैट इज वेब बेस्ड ट्रेनिंग, कि आप वेब के थ्रू जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करें रादर देन द ट्रेडिशनल क्लासरूम इन्वायरमेंट। और फिर इसी तरह से कल्चरल जो चेंज है उसकी बात हो रही है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क टू चेंज द कल्चर। तो हम कल्चर चेंज जो है वो एक छोटे लेवल पे है, स्मॉल ग्रुप के लेवल के ऊपर लेके हैं रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। किसी एक स्पेसिफिक टीम के ऊपर जो है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर जो कल्चरल जो है अगर चेंज करेंगे, कोई प्रैक्टिसेस चेंज करेंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और फिर इसी तरह से जो है करंट एसपीआई जो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि डिटेल्ड हैं, वो स्टिल ऐसा नहीं है कि वो डिटेल्ड हैं, लेंथी हैं, तो वो अब एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, वो हमें बेसिस प्रोवाइड करते हैं कि हम उससे क्या करें। वी नीड टू कम अप विद द बेटर, सिंपलर और मोर एजाइल मेथड्स बेस्ड ऑन दोज डिटेल्ड मॉडल्स।
आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। आज की लेक्चर जो था वो प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन थी। हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे और हमने बात स्टार्ट की CMMI से, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन से, जो कि CMMM का जो है उसी पे बेस करता है और एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है और ये दो तरह से सर्व करता है। इस एक तरह से ये इसको हमने कहा कि ये मेटा मॉडल है। मेटा मॉडल फॉर द कंटिन्यूअस मॉडल भी है और स्टेज मॉडल भी है। कंटिन्यूअस मॉडल मीन ये कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो हर प्रोसेस के अंदर जो है किस तरह से एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। और स्टेज मॉडल भी इसीलिए है कि वो जो डिफरेंट लेवल्स हमने डिफाइन किए हैं उसके ऊपर हम असेस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को। और फिर हमने बात की ये जो डिफरेंट कैपेबिलिटी लेवल्स हैं, इनकम्प्लीट बात की कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल है और अगर किसी भी तरह की जो है वो प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो डेफिनेटली दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एट लेवल 0 या इनकम्प्लीट। और जो सबसे डिजायर्ड लेवल है दैट इज ऑप्टिमाइज्ड। और ऑप्टिमाइज्ड लेवल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वी इनफैक्ट यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स या स्टैटिस्टिकल जो टूल्स यूज करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज को, अपने प्रोसेसेस को, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। और फिर हमने CMMI को अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्रोसेस एरिया लिया, प्लानिंग द प्रोजेक्ट, और उसके अंदर हमने देखा कि क्या स्पेसिफिक गोल्स और प्रैक्टिसेस हैं और क्या जनरल गोल्स हैं और हर गोल से रिलेटेड क्या जो है जनरल प्रैक्टिसेस हैं। और फिर हमने कुछ और फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए, जैसे स्पाइस की बात की कि स्पाइस जो है वो ISO के जो स्टैंडर्ड्स हैं फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी उसको फोकस करता है, उसको जो है वो कंप्लीमेंट क्या लें करता है। और इसी तरह से बूटस्ट्रैप की बात की कि बूटस्ट्रैप भी जो है स्पाइस ही का एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसी तरह से एवेलुएट करने में, असेस करने में हेल्प आउट करता है बेस्ड ऑन ISO स्टैंडर्ड्स। और फिर हमने टिक IT की बात की या टिकट की बात की, और टिक IT जो है वो फोकस करता है जो ISO का जनरल क्वालिटी स्टैंडर्ड है ISO 9000, ये उस पर फोकस करता है, जबकि स्पाइस और बूटस्ट्रैप जो है वो स्पेसिफिक टू द सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फोकस करते हैं। और फिर हमने ISO 9000 के अंदर कहा कि एक वो भी कंटिन्यूस साइकिल के ऊपर फोकस करते हैं, प्लान और चेक, एक्ट, डू और एक्ट। और इस तरह से हमने बात की पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस की कि किस तरह से हम रादर देन की ऑर्गेनाइजेशन की बजाय प्रैक्टिशनर जो है उसको फोकस करे और उसको ये प्रिविलेज दें कि वो खुद से प्लानिंग करे प्रोजेक्ट के लिए, डिज़ाइन करे और फिर उसके लिए मैट्रिक्स प्रपोज करे और फिर कोड करे, टेस्ट करे और फिर अगेन पोस्टमार्टम करे कि वो किस तरह से प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता है। और फिर हमने कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो है ये इतना अडॉप्ट नहीं किया गया पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, तो फिर टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रपोज किया गया और इसके ऊपर फोकस किया गया कि रादर देन कि हम ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल पे फोकस करें, हम टीम पे फोकस करते हैं। और टीम के अंदर भी फिर अगेन वही एक्टिविटीज़ हैं कि किस तरह से वो प्लान करती है और डिज़ाइन करती है, टेस्ट करती है और पोस्टमार्टम करती है। फिर हमने बात की कि जो SPI इन्वेस्टमेंट है ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और इसके ऊपर हमने अगर ROI देखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है, तो क्वालिटेटिव वे के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है प्रोडक्ट्स की, अगर रीवर्क नहीं जो है उसको हमने कम किया है, तो इस तरह से जो ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे देखा जा सकता है। लेकिन अगर इसको क्वांटिफाई करना हो तो ये अगेन इतना इजी टास्क नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसको सोचना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि किस तरह इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। और फिर आखिर में हमने रीसेंट ट्रेंड्स की बात की और रीसेंट ट्रेंड्स के अंदर हमने कहा कि जो पहले फोकस था वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल अप्रोच के ऊपर था, जबकि अब जो है वो एजाइल डेवलपमेंट हो रही है और एजाइल फोकस है, तो वी नीड टू मूव टूवर्ड्स एजाइल इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। और इसके अंदर हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए
बल्कि प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट बेस्ड जो है इम्प्रूवमेंट की बात करनी चाहिए, और प्रोजेक्ट के अंदर जो है हमें डिफरेंट वो एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। और हमने ये भी कहा कि रादर देन के बहुत सारे जो है प्रोसेसेस को और प्रोसेस एक्टिविटीज़ को हम प्रैक्टिसेस को देखें, हम कुछ की प्रैक्टिसेस जो है उसको अडॉप्ट करें और उसको जो है फॉलो करें। और फिर इसी तरह से हमने बात की कि जो डिफरेंट हमारे पहले से फ्रेमवर्क हैं, वो फ्रेमवर्क हमें बेस प्रोवाइड करते हैं कि उनसे हम ड्राइव करें ज़्यादा सिंपलर प्रोसेस मॉडल जो कि इम्प्रूव हों, जो कि एजाइल के ऊपर फोकस करते हों। और इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो हमें ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।